Hello guys, welcome back to Mark Darshan. So guys, we will be having today a group discussion number 3. So topic for today's group discussion is there in the chat box. Please check the chat box. I'm giving you 2 minutes to think on this topic. After 2 minutes, we will be having a 15 minutes of discussion, and then after that, I will be reviewing each and every one. Okay. Yeah, look to- Oh, screen. Yes, मनीष गर्ग, यू आर नॉट देयर. ओके, कल भी आपने पार्टिसिपेशन किया, एनरोल कर सकते हो आप. ठीक है गाइस, तो एंटायर डिस्कशन में आपका वीडियो ऑन होना चाहिए. मैं लॉक कर रहा हूँ स्क्रीन. ओके. प्लीज स्टार्ट. Good evening, friends. My name is Marcel. I take the opportunity to initiate the group discussion. Today, this topic is women empowerment, yeah, gender equality, reality is myth. So I discuss in three phases. First phase positive aspect, negative aspect, challenges. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोवाइड सॉल्यूशन. Now invite all of the friends to this past meeting. Friends. So women empowerment is or gender equality. Women empowerment is a reality occurring in India. As हम लोग देखते हैं कि आज आज का जो पीरियड चल रहा है इसमें महिलाएं जो है उनका कंट्रीब्यूशन नेशन के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा है. मेन के साथ साथ भी अगर हम एग्जांपल देखें कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी कम फ्रॉम अ वेरी सी कम फ्रॉम ए ट्राइबल बैकग्राउंड. एल्स इसके बावजूद भी वो देश के सर्वोच्च सर्वोच्च पद पे वो बैठी हुई है प्रेसिडेंट न. ये तो एक एग्जांपल है. बाकी और सब भी हम देख सकते हैं. ओलंपिक ओलंपिक में बहुत सारे फीमेल्स जो हैं वो हमारे देश के लिए मेडल लाई हैं और बहुत प्राउड हमारे देश को फील कराई है. इवन and further you people want to add some more point, please add.
हाँ यस हिमांशु, ओलंपिक में भी हमारे देश की लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एग्जाम्पल मनु भाकर जी का लीजिए, उन्होंने 2 मेडल जीते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट अभी अगर देखा जाए अपने देश में भी, तो टोटली इक्वलिटी मेन और वोमेन के बीच में नहीं है। वर्क प्लेस में बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ पे वोमेन की कंट्रीब्यूशन मेन की अपेक्षा बहुत सारे कम है। बहुत जगह ऐसे भी देखा जाता है कि जो वोमेन को सैलरी दी जाती है वो मेन के हिसाब से कम दी जाती है। इसके बावजूद भी वोमेन बहुत अच्छा करी हमारे देश में। हमने अभी देखा जो हमारा चंद्रयान था, उसका भी जो सफल परीक्षण हुआ उसमें वोमेन मतलब वोमेन की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। तो वोमेन एम्पावरमेंट अभी इंडिया में ये रियलिटी है, धीरे धीरे वोमेन का जो इक्वलिटी है यस, मेन के बराबर वो बढ़ रहा है। यस Just फ्रेंड, तो मैं इससे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि ना हर एक फील्ड में हमें ना वोमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना होगा, ताकि ना जेंडर इक्वलिटी यस हो सकेगी। मतलब अभी म- टोटली यस नहीं बोल सकते कि जेंडर इक्वलिटी है रियलिटी में, है। अभी देखा जाए तो, क्योंकि अभी उतना नहीं है। मतलब हम लोग को My करने की dear, जरूरत my dear है friend, हर एक फील्ड में। यस, I want यस, to add यस, some points regarding the improving the women empowerment in different sectors by the government. Like details, recently 33% reservation is being decided in the assembly, Lok Sabha assemblies. And other than this, at major CEOs, CEO positions like in railway board staff, we have recently we have the female candidate. And other than this, major like IT sectors, you can see that major company head in HCL, we have Indian women. And also in foreign countries, we have foreign companies in which our Indian women are leading the companies and representing our India. So I can Recently, think, recently the yes, USA election has ended. We can also see that the Kamala Harris, who was the contender for the Donald Trump, she was the contender for the president post in the America. And also, I just want to add one point also, that one of our my friend has told about the 33% reservation in the assembly. Even many state government has also given the reservation, almost 30 to 35% reservation for the females, either in the either for the job or for the admissions in engineering colleges and medical colleges. And even in IITs and IITs also, government has reserved the many seats for the female, so that the female students will take the admission and I want will contribute for the progress of यस, the nation. I want ये to add सारा something. बोलना चाह रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो हाँ, Okay. यस, कंटिन्यू। मैं जैसे आप लोग बोल रहे थे, जैसे अब चंद्रयान का मिशन था, तो उसमें जो टेक्निकल डायरेक्टर थी वो एक लेडी थी। एक यस लेडी यस थी। और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में जब 2029 तक 1/3 जो मेंबर्स होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस गवर्नमेंट ने बोला है कि 1/3 जो रिजर्वेशन हम लेडीज को देंगे, टू अपलिफ्ट देम और टू प्रोवाइड देम गुड पार्टिसिपेशन, so that they can be uplifted and they can be made to equal to the male community. And Okay. यस, second In is the एक beginning, पॉइंट ऐड करना चाहूंगा I कि ना मतलब वुमेन want वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जब ज्यादा होगा तो ना एक मोटिवेशन भी आएगा समाज में। मतलब लोग to जागरूक होंगे कि मतलब उसको बढ़ावा देंगे। जैसे गांव लेवल पे भी हाँ देखेंगे कि ना मतलब विद्युत में महिला इन्वॉल्वमेंट सब यदि फीमेल का होता है तो आसपास में महिलाएं उसके तरफ जागरूक होती है। जैसे कि स्कूल में टीचर वगैरह भी महिलाएं होती है, तो उसके भाई बंधु जो भी रिलेटिव हैं तो वो थोड़ा मोटिवेट जैसे होते हैं कि हाँ, जैसे हमें भी वुमेन इन्वॉल्व होना चाहिए। वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी रिसेंटली उन्होंने ड्रोन दीदी का एक कॉन्सेप्ट हुआ कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी yes. हमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ड्रोन दीदी का एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी भी उनको वो प्रोवाइड करें और उनको उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएं, खास करके एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड ये इकोनॉमी है मोस्टली। तो यस उसमें लेकिन भी सिविल, है। लेकिन और आज सिविल हम भी गवर्नमेंट अच्छी इनिशिएटिव ले रही। ये सिविल गवर्नमेंट अच्छी इनिशिएटिव ले रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ आम नागरिक को भी सोचना चाहिए कि हमें भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना है। जैसे यस, उन्होंने यस, अवेयरनेस। उन्हें अपनी आज भी बेटियों आज को हायर आज डिग्री want के to लिए add पढ़ाना चाहिए, उन्हें जॉब के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और उनकी जो अर्निंग है, जो गर्ल्स की जो अर्निंग है, उनको एक्स्ट्रा इनकम ना सोच के उनकी उनकी अर्निंग को, उनको रिकग्निशन, उनके इंडिपेंडेंसी के साथ सोचना चाहिए। अगर इवन ऐसे हाँ, सोच के यस, इवन बढ़ावा हम देंगे तो वुमेन आज भी एम्पावरमेंट हम लोग अच्छा होगा। देखते एक हैं कि पॉइंट ऐड करना समाज चाहूंगा, समाज में बहुत अवेयरनेस। जगह ऐसा है कि देश के कुछ जगहों में ऐसा है कि जहाँ पे लड़कियों के पैदा होने पे उनको
उनको मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता है, वो उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है। आप बहुत सगुन कम माना, बहुत आप बहुत सगुन कम माना जाता है बहुत कम बहुत उम्र जगह। में बहुत कम उम्र में उनका शादी हो जाता है, उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है, जो कि Okay. देश के बहुत पिछड़े जगहों में ऐसा होता है। यस तो यस I मैं think यस, रिसेंटली मैं एक पॉइंट मैं ऐड इस करना कारण से चाहूंगा बोलना कि ना चाहता हूँ। अवेयरनेस की जरूरत है। मतलब हम्म समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ना मतलब बेटियां बढ़ेगी, बेटियां पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। हाँ सरकार तो सरकार का अवेयरनेस, एक स्कीम भी हाँ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, एग्जैक्टली बेटी exactly. बचाओ यस और बेटी यस पढ़ाओ। रूरल इसमें अगर एरियाज हम बात करें में हाँ, तो ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होगा, मुझे अवेयरनेस गांव गांव तक फैलाना पड़ेगा, इस बात को समझाना पड़ेगा, तभी ये मतलब ना इस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सिर्फ यस सर, आई मतलब थिंक और इसको औ- गवर्नमेंट और ने इसको एक आगे चीज भी मैं बढ़ा। इस पे मैं इसको और एक चीज अप्रूव मैं करने के लिए बताना जो चाहता सेल्फ हेल्प हूँ ग्रुप्स भी कि काफी कर रखे हैं, जो हर एक विलेज हाँ, में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वुमेन्स के, वो उनके यस, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी काफी हेल्पफुल है। और फिर वो सारे आंगन विलेजेस की वुमेन्स के एजुकेशन से रिलेटेड हो आंगन या फिर वो आंगन फाइनेंशियल आंगन स्टेबिलिटी हो, उस पे भी काफी हाँ, हेल्पफुल है। आंगनवाड़ी है, जैसे एक आंगनवाड़ी है, उसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। उनका एक एक जरिया होता है, रोजगार रोजगार का एक जरिया होता है, जिसे अपने वो हम्म, रोज हाँ दर्रे का अपने अपने फैमिली को पाल पोस भी कर सकती हैं। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो हमारे जो चाहे आर्मी हो नेवी हो, उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेडीज को और प्रमोट कर रही है, जिससे कि अब लोग अवेयर हो, उससे मोटिवेट होकर और पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। और I अब जैसे इवन जो रिसेंट हमारे इवन मैं और ऐड रिसेंटली है करना सर ये, चाहूंगा कि जो इवन सीआईएसएफ इवन एक फाइटर वुमेन प्लेन बटालियन को फाइटर स्पेशली सारंग बोलना इवन सर चाहता हूँ हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली भी लागू किया। पायलट भी हाँ फीमेल्स उनको रन कर रही है। और ये सारंग को मुंह रिसेंटली पर अभी दो, वो बोलना कल चाहता है अभी। कल की ही बात है कि गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हम्म। वोमेन के लिए अलग से वो रिजर्वेशन दे दिया है सीआईएसएफ में। in यस तो मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, हर जगह मुझे ये समझने की जरूरत है, हर एक फील्ड में इक्वलिटी संभव नहीं है। मतलब जिस फील्ड में उनको इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सके, जैसे कि ना टीचर वगैरह, या मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीचर वगैरह बनना उनके लिए आसान है, लेकिन यदि सुरक्षा के पर्पज से देखें, बॉर्डर पे भेजना, तो ये तो संभव नहीं है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे मतलब आई उसका एम इन्वॉल्वमेंट नहीं पार्टली नहीं एग्री हो सोनू विद नहीं योर नहीं पॉइंट। आर्मी में बट भी हमें लेडीज बहुत अच्छा कर रही हैं। आर्मी में भी इवन आर्मी लेडीज बहुत अच्छा कर हम रही हैं। हम आर्मी उनको में क्या है फोर्स ना कि फोर्स आर्मी में वुमेन्स को पोस्टिंग वो बॉर्डर में नहीं है, वो बॉर्डर में पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं हाँ, उनको, तो ये तो मतलब जहाँ पे। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बट हाँ कि मतलब उसको कहाँ। इक्वलिटी मतलब ये नहीं है कि जो उनकी फिजिकल इक्वलिटी हो। इक्वलिटी मतलब ये है कि उनकी सेरेब्रम जो अपॉर्चुनिटीज ब्रेन पूरे की मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी, ब्रेन सोशल की जो इक्वलिटी, इक्वलिटी है उस पे मिलना चाहिए, ना कि फिजिकल एक्टिविटी। हम उसको कंपेयर नहीं कर सोशल। सकते कि जो जो ह्यूमन की मेल की बनावट है, जो उनकी आपकी मेटाबॉलिज्म है, चाहे जो है वो डिफरेंट है फीमेल से। बट हम वो चाह रहे हैं कि जो ब्रेन की इक्वलिटी हो, मतलब अपॉर्चुनिटी सेम मिले, वो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल तो दोनों रिकग्निशन लोग के से मेल। मिले। नहीं तो हाँ, हर सोशल। जगह अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं दिया जा सकता ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, हर जगह इक्वलिटी नहीं हो सकती। मतलब देखा जाए तो मेल एक डोमिनेंट होते हैं, मतलब फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो तो उन्हें वो बॉर्डर पे ऐसा भेजना। वो सोशल, सोसाइटी का वैसा परसेप्शन बना हुआ है कि वो मेल इज बन गया है, डोमिनेंट। वो हाँ, वो हाँ, बन वो गया है वो सोसाइटी का ओवर द ऐसा ईयर, परसेप्शन क्योंकि बना हुआ है जो शुरू हमारी से चला हमारी आ रहा है। सोसाइटी हमारी सोसाइटी जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी है। कुछ हाँ जगहों हाँ। कुछ स्टेट्स में ही मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटी था। हम उससे ही निकल के आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेल जो आप डोमिनेटेड आप फीमेल्स सोसाइटी है। एग्जाम्पल फीमेल्स आप एग्जाम्पल देख लो ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, बहुत बार ऐसा हुआ है कि फीमेल टॉप की है, मेल नहीं टॉप एग्जैक्टली किया है। लाइक टीना आप डाबी, अपने उन्होंने टॉप किया रिसेंट में। अगर आप देखें तो टीना डाबी ने टॉप आप किया है। अपने अ, आप अपने इसी ये ग्रुप फील्ड, को भी देख सकते ये हैं, यहाँ पर एक भी एजुकेशन लड़कियां फील्ड नहीं है। अच्छा है। ये भी देखा जाता है कि जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में लड़कियां बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखो, मेडिकल जहाँ लड़कियां नेगलिजिबल होती हैं। मेरे समझ से जो लड़कियां अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, तब जैसे मनु तभी भाकर है, तभी प्रियंका तो वाड्रा तभी गांधी, तो इनका सोशल रिकग्निशन होना चाहिए। उनका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, जिससे जो गर्ल्स चाइल्ड हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो अपने क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करें। तभी तो I सरकार want ने इंजीनियरिंग कॉलेजेज में लड़कियों के लिए अलग से आईआईटीज सीट रिजर्व किया सीट है, दी, खास अलग करके से सीट आईआईटीज रिजर्व और किया है कि एनआईटीज में। उतनी आईआईटीज और सीटों में एनआईटीज सिर्फ में लड़कियां ही एडमिशन मेरे लेंगी। अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का सिर्फ इतना है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे हर फील्ड में। अगर कोई लड़की जाना चाहती है तो उसको कम से कम उस जिसमें रेस्ट्रिक्शंस ना हाँ, हो, बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा दिया हाँ जाए। बढ़ावा यस, दिया जाए, चाहे वो because आपकी बढ़ावा दिया। डिफेंस हो, in उनको फाइनेंशियल या करना फिर है नहीं एजुकेशनल, करना सब उनकी जगह पे। चॉइस है।
उनको हाँ करना है या नहीं करना उनकी चॉइस है, चाहे वो फील्ड में काम करना चाहे या ना करें, वो सर्विस सेक्टर में काम करे, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मे बी अगर हाँ 10% 20% भी लोग भी हैं, अगर जाना चाहते हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सोसाइटी का परसेप्शन भी थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि चेंज वो करना लोग चाहिए। वो लोग तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि बहुत हाँ, सारा ये अवेयरनेस तो प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस के थ्रू ऑर्गेनाइज तो कर ये तो सकते बोला हैं, गया था। किसी हाँ एनजीओ से हम लोग जुड़ अवेयरनेस सकते प्रोग्राम, हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हाँ को हाँ बढ़ावा देना चाहिए। जो हाँ मेल ये तो डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको शिफ्ट करना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों दोनों इक्वल हैं, दोनों कोई भी डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, वो डोमिनेट करे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो कि हाँ, जो मेल सोसाइटी में डोमिनेटेड सोसाइटी है सोसाइटी उसको में सप्रेस दोनों तरह करना के चाहिए। लोग हैं। अगर हम देखेंगे तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसको वो लोग पूछते हैं, लक्ष्मी माँ की तरह मानते हैं कि हाँ हमारे घर में लक्ष्मी आई है। Okay, I want to यस add सर, something. लेकिन ये हर जगह नहीं होता है फ्रेंड्स, ये हर जगह यस नहीं सर। होता है। कहीं कहीं मतलब उसको Okay. गलत निगाह से देखा जाता है कि नहीं ये तो एक बोझ हो गया और इसका दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब फैमिली पे एक बोझ की तरह देखा जाता है। तो मतलब वही हर जगह लक्ष्मी के रूप में नहीं देखा जाता है। वही हमें Because, वही हमें सुधारना वही है। हमें सुधारना है, वही हमें एग्जैक्टली वही हमें सुधारना है। सुधारना अवेयरनेस है। के चाहे थ्रू, अवेयरनेस के और थ्रू, यस वो यस। ऐसा हाँ, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी नहीं है, अशिक्षित हैं लोग यस वहाँ पे। फ्रेंड्स, Saran want to add the point, please Saran. I want to add something. In earlier days, uh, women are treated as only a commodity in kitchen, only a Yes. commodity in kitchen. But it's improved in nowadays. Yeah? For strengthen the women empowerment, we have to, according to me, there are three pillars. One, education. You have to give them education properly. Then authority. You have to give them authority. Then employment. These are the three pillars of women empowerment. Still, I know personally, still the families are there who they do not agree to go job Let them for. job. Yeah. go for a job, exactly. So three pillars. We have to improve education, authority, employment. These are the three pillars I want to. और वन रीजन और Totally वन agree. एक रीजन और है कि जैसे हमारे यहाँ एक लड़कियों को बाहर इसलिए नहीं भेजा जाता है, फीमेल्स को, कि एक सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है, तो उसका Safety एक issue. सेफ्टी इश्यू भी रहता है, इसलिए लोग जनरली नहीं भेजते नहीं है। मतलब वो चाहते हैं, बट वो एक्चुअली चाहते So हैं कि लड़कियां बाहर जाएं, बट सेफ्टी के कंसर्न से भी ऐसा होता है कि वो लोग नहीं जाने देते हैं। safety नहीं is तो ये we have to give अवेयरनेस awareness to boys, or they who harass the girls. We have to give them punishment, यस or यस ऑफ we have कोर्स। to give awareness to boys. यस यस इसके इसके यू हैव इसके टू लिए जुडिशरी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग होना You होगा। know, सरकार भी women. अच्छा काम करे, We, जैसे पिंक बूथ बना रही है, पिंक पुलिस स्टेशन बना रही है, सरकार होमो हाँ सेफ्टी के लिए एग्जैक्ट अच्छा काम कर रही और जुडिशरी सिस्टम में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश करे, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, जल्दी से जल्दी सजा दे उनको। we have ऐसे no है। यस Delhi Nirbhaya ये तो case. Delhi Nirbhaya. हाँ, दिल्ली There are, निर्भया। Okay. निर्भया केसेस, देन कर्नाटका केस। Conclude. कोलकाता केस। Okay, finally, we have a very good discussion on the topic women empowerment and gender equality is a myth or reality in India. So we finally reach at a conclusion that the women empowerment is a myth, because we can see that not in every sector there is a lot of contribution of women, whether in the defense sector, whether in the healthcare sector, pharmaceuticals, everywhere women is, or in we can also see that in the in sports area also women are getting the Olympic medals for our country, just making our country proud. And but the other thing is also that there are many people of the society who are not promoting the women education, and मतलब आज भी उनका बहुत सारा, मतलब ये ऐसा दिमाग में बात है कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर हम अपना एग्जांपल देखें कि लड़कियां हमारे, एज एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू, शी इज लीडिंग आवर नेशन। So we can say that the women empowerment is a myth, not a myth is a reality, not a myth. I agree with my friend. I concluded this with the
Wait, Major steps. no points after conclusion. Okay, sir. Okay. What, Pradeep Meena? Yes, Have sir. you not watched the Sir, recordings? Are you sir, I not was Are concluding. you not aware about the group discussion rules? No point should be put up after the conclusion. Okay, ठीक है. बेटा तुम इतना ही खराब लगता है दवाई के अभी तक तुम खो करेगी तो अभी जो भी व्यक्ति थे, मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछना चाहूंगा. अब बताइए, प्रदीप मीना बताइए आप. Sir, personal individual conclusion. Yes, conclusion. Sir, according to me, the women empowerment in India is really at a very good scale. Like in defense, in education, in health sector, everywhere women are doing good. But in spite of doing all this, the majority population live in the rural areas where the women are not getting the proper opportunities of getting education, proper medical health facilities, and other facilities. सो मेजर जो गर्ल्स है उनकी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही. इंस्टेड सेकेंडरी हायर लेवल एजुकेशन तक ही हो पाता है. उसके बाद मेनली जो राजस्थान की साइड देख लीजिए, आप हरियाणा साइड देख लीजिए, बस चाइल्ड मैरिजेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि गर्ल्स की लिटरेसी रेट काफी कम है. तो सर मेजर क्या है कि हमको जो ये जो रूट कॉज है, जो इसका मतलब हमें सोसाइटी अपना अर्बन ये रूरल लेवल्स पे, जो लोअर लेवल्स पे काम करना चाहिए कि गर्ल्स को भी प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए in majorly in education and health sector, in sports also. Okay, fine. अंकुश conclude करिए आप. Sir, on the behalf of the group discussion and the fruitful group discussion, we reached the consensus that women empowerment is the reality nowadays, but total women empowerment is not done. So we conclude we discuss the following point that women are equally treated in the workplace as well. They will be the paid equal amount to the men if they are doing the same job. We also discussed that women safety is very necessary. That so many people want that their girl child study higher education, but they do not send her just because of the safety. We also talked about the ISRO leader for the Pariksha of the Chandrayaan 3, I think, and we also talked about the President Draupadi Murmu, who is leading our nation very good. We also talked about the Pink Booth, which is government doing a very good initiative to save for the safety of the girl child. So following point we have discussed. Thank you. Great. Okay, Sarang, please you conclude. Okay, comparatively, okay, during the conclusion, okay, in comparatively, in earlier, comparing earlier days, women empowerment is still good, but not achieved equality. Not achieved equality. Sir, our nation is there exists a brutal belief sati. It's a nation where we exited a sati. According to this, it's a according to that year, it is good. Nowadays, gender equality is good, but still a myth. But we have to be more improve in awareness, giving awareness to boys. Okay. Okay. Sonu Kumar, please conclude. Yes, on the behalf of group discussion, very fruitful discussion. Women empowerment is reality, not myth. मतलब इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे डिस्कशन किया, जैसे मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, कई सारे फील्ड में हमें इक्वलिटी लाने की जरूरत है. इस पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये सब कुछ एग्जांपल हमारे कलीग ने द्रौपदी मुर्मू के लिए, कुछ मतलब चंद्रयान 3 में कोई लेडीज पर्सन लीड कर रही थी, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ओवरऑल मतलब ना, वुमेन एम्पावरमेंट रियलिटी, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू डिस्कशन. ओके, शिवेंद्र आप बताइए. सर मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट रियलिटी है और मिथ नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे एक हमारे फ्रेंड ने राइटली मेंशन किया कि जैसे द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की फर्स्ट पर्सन है, राष्ट्रपति हैं. और अगर हम बात करें इसरो में, तो इसरो में जो टेक्निकल चंद्रयान 3 की जो टेक्निकल लीड थी वो एक फीमेल ही थी. और अगर हम देखें आपका मेडिकल फील्ड में, तो जो जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है नाउ डेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है.
और अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में तो बहुत ही अच्छा गर्ल्स कर रही हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है। जहाँ पे मुझे लग रहा है लैगिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जैसे एक फ्रेंड ने बताया कि क्या क्या चीजें हैं हमें वुमेन एम्पावरमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पहला एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और दूसरा है कि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और तीसरा ये है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो मेरे हिसाब से जो वुमेन एम्पावरमेंट है एक रियलिटी है, और हम इस इंडिया में काफी अच्छा कर रहे हैं। Okay, thank you. So guys, it was a very good and fruitful discussion, but still I have some feedback for you. So guys, first of all, Sonu Kumar started with the introduction part, but the introduction was not clear to me. The introduction और अच्छी तरह से डिलीवर हो सकता था, but you have not delivered that introduction part. After that, you started with English, right? Okay, but I would be suggesting you better not to start with English, because you are not as comfortable in English as compared to Hindi language. If you speak in Hindi, if you have started the group discussion entirely in Hindi, I would have said yes, आपने perfect introduction दिया होता. There you lagged. There you lagged. ठीक है. Otherwise, afterwards, you have spoken very good points. Okay, you have spoken literally very good point, and I assure कि आपका GD GT clear हो जाएगा. GD तो clear हो जाएगा. Okay, ट्राई करिएगा. नहीं भी दोगे आप इंट्रोडक्शन तो कोई इशू नहीं है, कंक्लूजन आप दीजिएगा. इंट्रोडक्शन नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनिए. यू हैव द गुड लिसनिंग कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी. दैट स्किल इज वेरी गुड इन यू. अप्लाई दैट स्किल एंड क्लियर योर GD एंड GT राउंड. आफ्टर दैट, अंकुश कसौदन, यू आर वेल प्रिपेयर्ड. ओके, मैं आपसे कह सकता हूं कि अब आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको GD GT से कोई बाहर नहीं करेगा. ठीक है, GT में बिकॉज आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स दिखी. इवन सोनू कुमार, वो लीडरशिप आपने शो किया कि सारंग को मौका देना चाहिए बोलने का. ओके, ठीक है, आपके पॉइंट्स अच्छे थे कि आंगन टीचर के आपके पॉइंट्स अच्छे थे कि टीचर में होता है, वहां पे भी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है. उसके बाद आर्मी, और एक जो आप लोग कह रहे थे कि हमें फिजिकल पे नहीं देखना चाहिए, हमें मेंटल स्टेबिलिटी पे बात करनी चाहिए. देखो गाइस, वुमेन एम्पावरमेंट में फिर उसके बाद में क्या नाम है आपका, हिमांशु साकेत ने वो पॉइंट को काटा कि बात ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकल पे नहीं देखना चाहिए. आर्मी में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा लड़ाई करने के लिए भेजते या फिर सिपाही बनते हैं करके, बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है. सिपाही को भी वुमेन एम्पावरमेंट दिया जाता है. ठीक है, प्रदीप के 33% रिजर्वेशन का पॉइंट रेलवे ठीक था, बट प्रदीप स्टार्टिंग में आप खींच रहे थे पॉइंट्स को, आप में क्लियर समझ में आ रहा था, आप पॉइंट्स को खींच रहे हो. उसके बाद कंक्लूजन होने के बाद दोबारा कंक्लूजन नहीं दिया जाता है अनटिल एंड अनलेस द पैनल मेंबर हैज आस्क्ड यू टू कंक्लूड. ठीक है, ठीक है. अंकुश ने पॉइंट अच्छा रखा कि एक पॉइंट उन्होंने कहा कि सैलरी इक्वल होनी चाहिए. मुझे बताइए, अभी आप लोग सेल में जा रहे हो, हाँ मतलब है कि केस सिनेरियो बन सकता है, ऐसा नहीं कि वुमेन को सैलरी कम मिलती है, अंडरस्टूड. बट ये बताइए, आप अभी आप लोग सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या सेल यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे कोई सैलरी या फिर भेदभाव करता है मेन एंड वुमेन से? नो सर. सर बेसिकली सर अनस्किल्ड वर्कर के साथ ऐसा होता है. अनस्किल्ड वर्कर, तो ये पॉइंट मेंशन करिए स्पेसिफिकली. अंडरस्टूड. उसके बाद मैं आपको बताता हूं. हाँ, हिमांशु ने पॉइंट्स रखे थे कि कहाँ चला गया वो पॉइंट मैंने रखा. हाँ, अब हिमांशु ने पॉइंट रखे थे कि बहुत सारे इंडस्ट्री या बहुत सारे सेक्टर्स में वुमेन्स को मौका दिया जा रहा है. ठीक है, बट आपने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं बताई थी. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इसरो किसने पॉइंट रखा था, इसरो का अंकुश ने रखा था. अंकुश ने स्पेसिफाई कर दिया था वो पॉइंट इस. ओके, जो आपने इंडस्ट्री कही थी उसके बाद में आपने कहा था एक चीज, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा. फिर अंकुश ने कहा था कि चंद्रयान में भी जो टीम लीडर थी वो वुमेन ही थी. ठीक है, शिवेंद्र ने कहा ड्रोना दीदी, अ वेरी गुड पॉइंट अराइज्ड.
जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आया। आंगनबाड़ी में भी फीमेल्स को मौका दिया जाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं। आपने दोनों जगह पे पॉइंट्स रखे, प्रोज में भी एंड कोस में भी, कॉन्स में भी आपने पॉइंट्स रखे। ठीक है शिवेंद्र, दैट वाज गुड पॉइंट। ओके सारंग, you entered very late. I understand that mostly the group discussion was occurring in Hindi and you were trying to speak in English language. But you let me know when I told you to conclude. In the group discussion, in the conclusion part, the conclusion should be whatever has been discussed in the group discussion, that should only come in the point of conclusion. A single point should not be concluded by your own. Has the point of sati discussed in the group? Yes, it's discussed or not? No, sir. Yes, No, sir. no. No, No, sir. sir. If you would have spoken this point, like if you have already spoken, right? If you had spoken this point directly in the cell, definitely you would have got 0 marks. Definitely, 100%. A single point should not become apart from the group you have discussed. In the group you have discussed, वही पॉइंट्स आपके आने चाहिए जो ग्रुप में डिस्कस्ड हुए हैं। कोई भी पॉइंट बाहर का नहीं आना चाहिए। यही बेसिक चीजें होती है जिससे जीडी जीटी में आप लोग बाहर हो जाते हो, बोलते हो। बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है। ठीक है, एक AIR 48 की स्टोरी सुनाता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 48 सिविल इंजीनियरिंग से। वो बच्चा बोलता मेरे को, IIT मद्रास में मैं था, मेरे को कांग्रेट्स बोलता है, सर आपका सिलेक्शन हो गया RCF में। फिर मैं बोला यार आपका रैंक कितना है बताइए आप। तो उसने बोला 48 रैंक। बोला आपका IUCL में हो गया होगा। फिर तो IUCL के रिजल्ट के अगले दिन की बात है। नहीं बोले सर नहीं हुआ, रिजल्ट दिखाया GD GT में डिस्क्वालीफाइड बोलता है। और जब इंटरव्यू देके आया था तब बोलता है सर मैंने तो बहुत अच्छे से बोल के आया, सब चीज अच्छे से बोल के आया है। बताइए, GD GT में डिस्क्वालीफाइड, AIR 48। यही छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसके वजह से GD GT में आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। समझ गए आप लोग? Yes, sir. कंक्लूजन के बाद कोई कंक्लूड करना स्टार्ट कर देता है, वहां पे भी आप लोग का नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। नेगेटिव आपको डू नॉट डू दैट थिंग। ठीक है सारंग, एट द एंड you spoken good points, like from your point of view you thought that there are 3 points: education, authority and education, authority and employment. But I thought that it was more oriented towards the conclusion part. Okay, you could have spoken these points, you could have elaborated this point. If you could elaborate this point, definitely you would have got +2 marks. ठीक है so basically providing your points in the short form, that comes in the conclusion part. Okay, so try to elaborate and try to come up in the discussion twice or thrice. Okay. Okay. Apart from that, किसका बाकी है? हिमांशु का द्रौपदी मुर्मू वाला पॉइंट अच्छा था। आप लोग गाइस वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप लोग ये भी कह सकते थे, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी तो हर तरफ में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। अब कंक्लूजन में मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग से दोनों पूछी गई थी कि क्वेश्चन था आपसे, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन है ना, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और रियलिटी इन इंडिया का पॉइंट था। आपने हिमांशु साकेत लेके चले गए ट्रम्प वाले सिनेरियो पे। वो पॉइंट सही नहीं लगा क्योंकि इसमें क्लियर दिया हुआ था इन इंडिया। ट्रम्प का पॉइंट वैलिड पॉइंट है यहाँ पे? नो सर मैं ध्यान नहीं दिया, मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ सर वो वैलिड नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अब इसका आपको आंसर भी प्रोवाइड करना है। द आंसर शुड बी इन द फेवर आल्सो, फेवर में नहीं भी हो सकता है, तो आपके अकॉर्डिंगली आपको बताना है। इसलिए मैंने सभी लोगों से कंक्लूजन लिया क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। मैं पूछना चाहता था कि आप लोग मिथ में रहते हैं या रियलिटी में रहते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने क्या समझा? बट प्रदीप मीना, मुझे आपके कंक्लूजन में मजा नहीं आया। आप थोड़ा और कंक्लूड कर सकते थे, खींच रहे थे आप, बातों को खींचिए मत। ठीक है, कंक्लूजन में भी मैंने वो ऑब्जर्व किया। मैं 100% श्योर हूं कि आपने कंक्लूजन वाले पॉइंट्स लिखे नहीं होंगे। जो भी कंक्लूजन जो भी बोलने वाला है
वो पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, वहां पे आप लोग को फायदा मिलेगा। ठीक है, कंक्लूजन के पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी ग्रुप डिस्कस में हो रहा है। देखो, जैसे मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, है ना, आप लोगों ने जो भी पॉइंट्स बोले, ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स बोले आप लोग ऐसे पॉइंट्स लिख के चलिए, और इसी को फिर बाद में कंक्लूजन में बोलिएगा। ठीक है, ग्रेट। तो एनी डाउट्स? दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सर कल 15 तारीख तक एक ग्रुप डिस्कशन जीडी जीटी होगा। हाँ, 15 के बाद 15 तक के तो है ना। अब देखो, आप लोग प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, सिर्फ प्रदीप मीना को जरूरत है, और जो बाकी के जो बच्चे आते नहीं है ना, 15 बच्चे एनरोल किए हुए हैं, बाकी के बच्चे आते नहीं है, डेली के 6 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, 6 या 7 बच्चे। ठीक है, तो अब वही है कि देखिए रंजीत सिंह अभी आए हैं इतना लेट, 9 बजे का जीटी होता है, 9 बजे का जीडी जीटी का सेशन है ना, 9 बजे का आपका सर जीटी का सेशन होता है, ठीक है, 9 से 10, है ना। सर कंक्लूशन करता हूँ भवन में कॉल तेरे को। सर सर ये कंक्लूशन ओनली वन व्हाट, प्लीज आस्क। okay sir conclusion can be done by only one candidate कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन आई वुड टेल यू, ओके, मैंने पीडीएफ भी दिया था, वो पीडीएफ को पढ़ा आप लोगों ने, कंक्लूजन में क्या 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 चीजें थी। कभी दो दो जीडी हो गए होंगे, कि केतन सर का हुआ है, एक मेरा हुआ जीडी, है ना। जीटी अभी का आज का पढ़ा है। हाँ, आज का तीसरा जीडी है। कंक्लूजन में आपने देखा, उस पीडीएफ को पढ़ा था आपने, उस पीडीएफ में पढ़ने के बाद कंक्लूजन में क्या पॉइंट्स, दोनों के पॉइंट्स थे, प्रोस के भी पॉइंट्स थे, कॉन्स के भी पॉइंट्स थे या नहीं थे, कि सिर्फ प्रोस के थे या कॉन्स के थे? सर एक बार शेयर कर दीजिएगा सर मुझे। ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप पे, वो टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, कंक्लूजन में आपके जो भी ग्रुप में हुआ है, दोनों पॉइंट्स आपके आना चाहिए, प्रोस के भी आना चाहिए, कॉन्स के भी आना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ, और ऐसे वाले केसेस में है ना, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, फिर वहां से आप लोग को आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्शन पूछा जाएगा कि आप क्या समझते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, सर सर जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस टाइम सर बोल सकते हैं कि हम लोग पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं, नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले ऐसा कुछ पूछना नहीं है वहां पे कि आप पॉजिटिव में बोलने वाले हो या मैं नेगेटिव में। हैं। इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं ग्रुप को ऐसा बोल सकता हूँ सर। क्या क्या बोल सकते हो? इंट्रोड्यूस, जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, हाँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें लास्ट में मतलब ये बोल सकता हूँ कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, फिर बाद में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। उसके बाद इनवाइट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट दिस वीडियो, नहीं ऐसा कुछ। नहीं करना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपका जो भी टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाइए, एंड सिंपल एक लाइन में कंक्लूजन जो लाइन होती है उसमें कह दीजिए, आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन, बस, and give the opportunity to my fellow colleagues so that they can also put up their points. Okay, उसमें नहीं बोलना है कि आप पॉजिटिव बोलिए या नेगेटिव बोलिए, सिंपल एक लाइन रट लीजिए, आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन एंड अलाउ माय कलीग्स टू पुट अप देयर पॉइंट्स इन द एंटायर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, सिर्फ ये लाइन रट लीजिए और ये 5 पॉइंट बोल दीजिएगा। ओके, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप इंट्रोड्यूस मत करिएगा, आपके लिए फायदे में रहोगे आप। ठीक है, हाँ, नहीं सुनोगे तो फिर कर सकते हो आप, हिमांशु साक आप कर सकते हो इंट्रोड्यूस, अंकुश कसोदन आप भी कर सकते हो, प्रदीप मीना आप भी कर सकते हो इंट्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है, यू हैव गुड इंट्रोड्यूसिंग स्किल्स, राइट। आप कंक्लूड करिएगा सोनू कुमार। ठीक है, चलेगा, ठीक है, एंड करते हैं। यस, सारंग बताइए, व्हाट यू आर हैविंग एनी डाउट्स? sir I am frequently saying negative words, is it affect my mark negatively doesn't affect, but today's topic was on the pros and cons, like there are some points in which you have to speak up in the positive favor only. ठीक है, like there are in most of the cases you will be getting, like कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं ना, मान लीजिए रेप का केस होगा, तो अब रेप के केस में आप किस में बताएंगे कि रेप होते रहना चाहिए? नेगेटिव पॉइंट में बोलेंगे आप? नहीं ना,
हाँ, तो it टॉपिक depends upon, डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक्स, राइट? ओके, sir, only one can get the chance to conclude. yes, mostly one only get, but ऐसा नहीं है. Like today's topic was there, so in that topic I wanted the point of perspective of everyone. ठीक है? So you किसी से भी पूछ सकते हैं, that depends on the panel member, right? Mostly conclusion is one only, single conclusion only there. ठीक है? But that depends Okay. panel to panel, है ना? In most of the cases there is only one conclusion, but panel can ask, right? क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. कभी भी जैसे ग्रुप डिस्कशन आपका चलता है, तो वहां पे ना कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलता नहीं है कुछ भी. तो जब कोई बोलेगा नहीं तो फिर उससे तो सिंपल सिंपल सा बात है, पैनल मेंबर उसी को बोलेगा ना कि भाई तू कंक्लूड कर करके, है ना? तूने पूरे एंटायर ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी नहीं बोला, Like me. Okay. फिर तो तू कंक्लूड कर दे सीधा सीधा. ये चीज होती है हाँ. और कुछ नहीं. चलेगा, एंड करते हैं. थैंक यू.